Good evening, students. Students, today we will cover the another topic of Paths to Modernization, Chapter 11 in History. The first one is imperialist dominance in China, then the examination system of China, and Sun Yat-sen, who was the founder of modern China. So let's begin with the first one, the imperialist dominance in China. Student, it is important to know the meaning of imperialism. What is imperialism? Imperialism, I will say, a policy of extending a country's power and influence through colonization, through the use of military force, or by any other means, is a imperialism, or I can say a state policy or practice of extending power and dominion, especially by direct territorial acquisition or by gaining the political and economic control of other territories and people. And that time in China, the Britishers were the imperialist dominance. It means they start interfering in the trade of China. What Britisher did, they start growing or the cultivation of opium in India, in Bengal, and the same they sold to the private traders who transported it to the China and sold to the Chinese smugglers. And student, China में opium आने लगी, and as a result the physical and the moral character of Chinese, it was decaying. So the Britishers were the imperialist dominance in China that leads to opium wars. And student, the opium wars which were waged between the Qing dynasty and the western power in the mid 19th century, I think the main reason was the opium, the smuggling of opium was the main reason of the opium wars. And student, in 1839 especially, when the first opium war began, the reason was that one government official he caught the opium from the ship and destroyed it. As a result, the British declared war against China. एक चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट का जो अधिकारी था, ऑफिसर था, उसने शिप मतलब उसने वहाँ पे पकड़ लिया वो सारा का सारा माल और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ओपियम को. एंड जो ब्रिटिशर्स थे वो दे डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट चाइना. सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ है, इट वॉज बिटवीन 1839 to 1842. And European forces that time, they used the recently developed warfare technology to defeat the Qing dynasty or the forces and compel the Chinese government to grant the favorable tariffs, ट्रेड कंसेशन एंड द टेरिटरी. जो ओपियम वॉर्स हुए हैं, द फर्स्ट ओपियम एंड द सेकेंड ओपियम, दोनों ही चाइना हार गया था. लेकिन बच्चे, फर्स्ट ओपियम वॉर एंड द सेकेंड ओपियम वॉर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ओपियम चाइना में स्मगल की जाती थी कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो थी चाइना की वो इसी में डूबी रहती थी. स्पेशली जो यूथ आ रहा था चाइना का, दे वर टोटली इन्वॉल्व इन द ओपियम. सो अगर मैं फर्स्ट ओपियम वॉर की थोड़ी सी और बात करूं, द फर्स्ट ओपियम वॉर, as I told you, it began in 1839 and it was fought between the Qing dynasty and the Britain over the trade, over the diplomatic status, financial reparations. So बच्चे, in 18th century चाइना जो था, चाइना enjoyed a favorable trade balance with the Europe by selling the silk, टी एंड इन एक्सचेंज ऑफ सिल्वर. चाइना यूरोप के साथ इन्वॉल्व था, सिल्क दे देता था, टी दे देता और बदले में क्या ले लेता था? सिल्वर. बट इन द लेट 18th century, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, what they did, they expanded the cultivation of opium in its territory in Bengal. बंगाल में उन्होंने फार्मर्स को कहा कि हमें ओपियम कल्टीवेट करके दो, एंड दे सोल्ड द सेम ओपियम टू द प्राइवेट ट्रेडर्स. उन्होंने फिर एजेंट हायर किए, प्राइवेट ट्रेडर्स को ये सेल किए ओपियम, एंड द प्राइवेट ट्रेडर्स दे ट्रांसपोर्टेड इनटू चाइना, एंड फ्रॉम चाइना it sold to Chinese smugglers. एंड स्टूडेंट बाय 1787, अगर मैं 1787 की बात करूँ, उस टाइम पे ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, दे वर सेलिंग 4000 चेस्ट ऑफ ओपियम. इट मीन्स इतने पैकेट जाते थे और एक पैकेट का वेट होता था 77 किलो.
सो इसका मतलब है इतनी ज़्यादा ओपियम हम सोच भी नहीं सकते, और वहाँ पे स्मगल होने लगी चाइना में. एंड स्टूडेंट वहाँ के, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर लिन. In 1839 even he wrote a letter to Queen Victoria about it कि जो ब्रिटिशर्स हैं they are doing wrong with the China by smuggling opium from the India. क्योंकि उस टाइम पे बच्चे इंडिया में भी किसका राज था, ब्रिटिशर्स का राज था. इम्पेरियलिस्ट पावर तो इंडिया में भी सेम थी, तो उन्होंने कहा इंडिया में से उगाएंगे और वहाँ प्रॉफिट कमा लेंगे. So he wrote a letter to Queen Victoria, he wrote a letter to many other authorities, but वहाँ से कोई भी ज़्यादा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया. इवन जुएकिंग एक कमिश्नर थे, सॉरी जुडिशरी में थे वो, उन्होंने बच्चे चाइना में 1729 में, 1799 में, देन 1814 में इस ओपियम जो ओपियम स्मगल हो रही थी चाइना में, उसको बहुत बार इनलीगल ट्रेड घोषित किया. उन्होंने बहुत सारा फाइन भी इम्पोज किया, लेकिन फिर भी जिसको बोलते हैं ना शिप्स के थ्रू छुप छुप के ओपियम चाइना में आने लगी, विच लीड टू द 2 ओपियम वॉर. The first opium war in 1839 to 1842 and the second opium war 1856 to 1860. And student, as a result, what were the consequences of opium war? It results into treaty of linking. Treaty of linking means Chinese were defeated in this war, and somewhere they were forced to pay a hefty amount as compensation. They also had to give the right of trade to the Britisher from 5 of its ports. Hong Kong देना पड़ गया उनको पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स को. And Chinese government even they also agreed that on the fact that if any Britisher would found committing a crime on these ports, he would not be tried in the court of China, but he would be tried in the British courts. इतनी छूट दी गई, ट्रेड में भी, टैरिफ में भी कंसेशन दिए गए, टेरिटरीज भी दी गई, हांगकांग पूरा दे दिया गया, और इसके साथ साथ उनको ये कहा गया कि अगर आप कोई क्राइम करते हुए पकड़े जाते हो तो उसकी जो जुडिशरी बैठेगी वो चाइना में नहीं, वो ब्रिटिश कोर्ट्स में बैठेगी. तो बच्चे कहीं ना कहीं आप ये देखें ना, फर्स्ट ओपियम वॉर एंड सेकेंड ओपियम वॉर जब दोनों चाइना हारा तो बहुत ज़्यादा उनको क्या कहते हैं भुगतान इस चीज़ का पे करना पड़ा. सो स्टूडेंट, द इम्पीरियलिस्ट डोमिनेंस इन चाइना. आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जामिनेशन सिस्टम. व्हाट वाज द एग्जामिनेशन सिस्टम इन चाइना? Examination system in China, I can say, student entry in the elite ruling class in China was mainly done through examination. Exams होते थे चाइना में, but it mainly required the writing in the classical Chinese, especially the 8-legged essay लिखना पड़ता था उनको, बहुत बड़े बड़े जिसको बोलते हैं ना essay, especially in classical Chinese in the prescribed form. एंड स्टूडेंट, जो मैं एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ चाइना में होते थे, दिस एग्जामिनेशन वॉज मेनली हेल्ड ट्वाइस इन एवरी 3 years. एंड व्हाट वाज द पास परसेंटेज? रेटिंग क्या आती थी? सिर्फ 1 to 2% दे पास एट द फर्स्ट लेवल, एंड आउट ऑफ दोज हु आर अलाउड टू सिट इन द एग्ज़ाम एंड यूजली एट द एज ऑफ 24. इट मीन्स समवेयर सिर्फ जो रेटिंग थी पढ़ने की वो 1 या 2% लोगों को पास किया जाता था, हु वर अलाउड टू सिट इन द एग्ज़ाम. एंड स्टूडेंट, बिफोर 1850 आई वॉन्ट टू टेल यू दैट देयर वर मोर देन 5 lakh civil and 2,12,000 military provincial degree holders in the whole country only. अगर मैं चाइना की पॉपुलेशन की बात करूं, उसमें से सिर्फ क्या है, सिविल डिग्रीज वाले हैं मोर देन 5 lakh, 5,26,000 कह लो, एंड जो मिलिट्री प्रोविनेंशियल डिग्री है वो है 2,12,000 ओनली. इट मीन्स there were only 27,000 official position in the country. बहुत ज़्यादा पोजीशन एंड जो डिग्री होल्डर्स थे वो आते ही नहीं थे क्योंकि सबको फेल कर दिया जाता था. आई थिंक स्टूडेंट्स, अगर आपने 10th में इंडो चाइना पढ़ा है चैप्टर, तो इंडो चाइना में भी द सेम कंसेप्ट वॉज देयर कि इतना ज़्यादा था कि सब बच्चों को फेल कर देते थे, फाइनल ईयर तक पहुँचने ही नहीं देते थे ताकि वो गवर्नमेंट जॉब ना मांग लें. And student, as a result,
many lower level degree holders, they were unable to get any job. And somewhere student, these kinds of exams, they were an obstacle, a barrier in the development of science and technology, because it focus mainly on the literary skills. सिर्फ literary skills पे focus करते थे कि जिनके percentage अच्छे हो जाएंगे तो उनको pass कर देंगे और उनको दे देंगे position, otherwise नहीं. So in 1905 the examination system was totally abolished from China, because somewhere it was based on learning the classical Chinese, जिनको बेसिक आती है चाइनीज़ लैंग्वेज सिर्फ, या जो 8 पेज के इतने बड़े बड़े ऐसे लिख सकते हैं क्लासिकल चाइनीज़ में, उनको प्रेफरेंस देना, ये सब बंद हो गया चाइना में. चाइना में अब क्या आया, ह्यूमन को एज अ एसेट कंसीडर किया जाने लगा, मतलब ह्यूमन की क्वालिटीज़ देखी जाने लगी, ना कि परसेंटेज. And student, the next topic is Sun Yat-sen, who is also known as the founder of the modern China. Student, Sun Yat-sen, in the previous video आपने उनकी फ़ोटो और आपने उनका थोड़ा सा सुना था, that he was a politician and a thinker. So what he did for China, why he is considered the modern, the founder of the modern China. Student, Sun Yat-sen, he belongs to a poor family. Then he took education in mission schools. When he came to know about the politics, about the democracy, then he took admission in the mission schools. Otherwise he became a doctor after getting education. And बट स्टूडेंट, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे उन्होंने मिशनरी स्कूल्स ज्वाइन किया, ही वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स ऑफ चाइना. ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ चाइना. इट मीन्स समवेयर he was interested in making the graph of China. So student, his program is famous with the name of 3 principle, Sun Min Chu. अब ये क्या है, मतलब जो 3 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से सबसे पहला है उनका प्रिंसिपल नेशनलिज्म, देन द सेकेंड वन इज़ द डेमोक्रेसी, एंड देन सोशलिज्म. इट मीन्स समवेयर सन यट-सेन, फर्स्ट ऑफ ऑल ही ओवरथ्रो द मंचू एम्पायर. क्योंकि बच्चे, जो चाइना में क्विंग डायनेस्टी थी उससे पहले मंचू एम्पायर थी, और मंचूज जो थे वो बाहर से आए हुए थे, फॉरेन डायनेस्टी माना जाता था. तो कहीं ना कहीं जो सुन यट-सेन है, उन्होंने क्या किया, उनको, उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया. एंड जितने भी बाकी फॉरेन इम्पीरियलिस्ट थे, जैसे मैंने बताया ब्रिटिशर्स थे जो ओपियम को प्रमोट कर रहे थे, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वर्क किया. Then establishment of democratic government. Of course, in 1912 he established the democracy government and declared China as a republic. And before it, the China was a very closed economy. China बहुत ज़्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होती थी, यूरोप के साथ इन्वॉल्व थी, सिल्क एंड टी फॉर एक्सचेंज ऑफ सिल्वर, लेकिन बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं होती थी. 1912 में दे डिक्लेयर चाइना एज अ रिपब्लिक, एंड आफ्टर इट दे स्टार्ट इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग एट द लार्ज लेवल. दे फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन बिकॉज द डेमोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश इन चाइना. And Sun Yat-sen, he was in the favor of socialism also. Socialism means regulating the capital, equalizing land holdings. बच्चे, आपने सोशलिज्म पढ़ा होगा रशियन रेवोल्यूशन में, क्लास 9th में. रशियन रेवोल्यूशन, रशिया में क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी लैंड होल्डिंग्स को लेकर. कहीं ना कहीं जो सारा का सारा पैसा था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हाथ में था, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में था. तो सन यट-सेन ने चाइना में सोशलिज्म को प्रमोट किया. इट मीन्स जो कैपिटल है वो एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट ना हो, लैंड होल्डिंग्स हैं वो सबको दी जाएँ. And student, he also identified the needs, the basic needs like food, shelter, clothing, transportation of the people who were living in China. So with the passage of time he became the political thinker and the historian. Even he was the doctor, but उन्होंने डॉक्टर की डिग्री साइड कर उन्होंने चाइना के बारे में इवन बुक्स भी लिखी. चाइना की पॉलिटिक्स में पूरा इंटरेस्ट